दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 5.2 ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ द क्लास 10th मैथमेटिक्स। क्लास 10th मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर पर हम एक्सरसाइज 5.2 पर आज चर्चा करने वाले हैं और आज हम आपको बताएंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। Okay, dear, now we will start the topic for today, and here is the topic for today is same the arithmetic progression and exercise 5.3, which is continuously running from the previous day. So now here is the question number 10 of exercise number 5.3. 10, and what is the question number 10 also? So that a1, a2, an from NAP, where an is defined as below. There are two parts in this question, and first part is an equal to 3 plus 4n. So this is, you can see just on the board. So an equal to 3 plus 4n, this is general term of NAP is given. Then how can you find the sum of first 15 term of this AP? So here is not given first term, common difference and AP, but only general term is given. So how can you find the sum of first 15 terms of or any other terms? So dear, for this we will proceed as the solution of this question. Here an equal to means general term is given that 3 plus 4n. So first of all we will substitute here n equal to 1, 2, 3, 4 and so on successively. On putting n equal to 1, 2, 3, 4 and so on, then we get that is a1 equal to, when you replace n by 1, so you will get 3 plus 4 into 1, that is 4, 7, and a2 equal to 3 plus 4 into 2, so this is 11, and a3 equal to 3 plus 4 into 3, means you will replace only n is, now we will put here 3, so we will get 3 4 15, and similarly you can put any other values of n, then you will get here, therefore you will get NAP, that is first is 7 and second one is 11 and third one is 15 and so on. Okay, so now you can say here that here first term a equal to 7 and common difference d equal to 11 minus 7 means 4, and requirement here is as 15. As 15 means sum of 15 term. So what to do in that case? That is, here you will take n equal to 15 because sum of 15 term is required. So dear, you know a formula, that is Sn equal to n by 2 and then 2a plus n minus 1 into d. So this is the general formula. Now you will substitute the values which you know. N is given that 15 by 2 and 2 into a is, you know, that 7, and again here 15 minus 1 and d here is 4. So you can solve this. What you get? You will get here as 15 equal to, that is 15 by 2 equal to 14 plus
Now 15 minus 1, that is 14, and 14 into 4, so you will get it as 56. And when you add this 56 to 14, then you will get simply 70. Okay. So this is 15 by 2 into 70. And now you can cancel this 70 by 2, then you will get 35. So 15 into 35, because half of 70 is 35. Now you will multiply 15 and 35, you will get it as 525. So this is the sum of first 15 term. So finally you can write that sum of 15th term equal to 525. So this is your answer. And here is the second part is also given, so you can do it just in same process, in same manner. First of all you will, हाँ पूछिए, हाँ बोलिए। हाँ ऑफ कोर्स, फिर आपका एक प्रोसेस यहाँ पे बढ़ेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे ये वैल्यू ए और डी फाइंड करने के बाद, हाँ ए और ये ए का वैल्यू पता कर लिया, डी का वैल्यू पता कर लिया। अब ये 15 यहाँ पे एन इक्वल टू 15 पुट करेंगे तो ये 15 भी आ जाएगा। और फिर आप यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला एन बाई टू ए प्लस एल या फिर ए प्लस ए एन वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ए फाइंड करना पड़ेगा पहले, क्योंकि यहाँ अभी तक आपने ए थ्री तक ही पता किया था। तो ए 15 अगर पता कर लेते हैं तो आप वहां भी वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। So now dear, this is the important question. This type question you will get in the examination. ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। साथ साथ में ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी पूछा जाता है। If n an equal to given that 3 plus 4n, then what is the 100 term of this AP? So you will replace n by 100 only. आप यहाँ पे n की जगह 100 लिखेंगे तो यहाँ पे 4 इंटू 100, 400 प्लस 3 आंसर हो जाएगा। तो वो 1 मार्क्स में पूछा जाता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन ये तो इम्पोर्टेंट है ही, इसका जो सोल्यूशन है वो 3 मार्क्स में पूछा जाता है। और साथ में अगर ये 3 मार्क्स में नहीं भी आता है तो ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। तो आप इसे थोड़ा सा अपनी कॉपी में टिक मार के रखिए, बिकॉज दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन। तो 1 मार्क्स के लिए भी है, अगर 1 मार्क्स में नहीं आता है तो 3 मार्क्स में आता है, अगर 3 मार्क्स में नहीं आता है तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है, लेकिन ये पूछा जरूर जाता है। इसीलिए इसे आप थोड़ा सा मार्क करके रखिए कि ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 11, एंड द क्वेश्चन नंबर 11 इज गिवन हियर दैट इन दैट क्वेश्चन सम ऑफ ए, this type of, this is the different type of question in which sum is given and then question says that find the different things। बहुत सारी चीजें इसमें पूछ भी रखी हैं। तो पहले तो हम इसे स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट को आप ध्यान से सुनिए। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n term of an AP is 4n minus n square, so कंसंट्रेट योर माइंड। सम ऑफ फर्स्ट टर्म मीन्स यहाँ पे एस एन दिया हुआ है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, पहला क्वेश्चन फर्स्ट टर्म पूछा। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म एंड टेंथ टर्म एंड द nth टर्म ऑफ दिस एपी। तो इसमें इतने सारे क्वेश्चन पूछ लिए हैं। तो सबसे पहले जो आपको गिवन है वो आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखेंगे। तो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 11। In this 11 question, here is given that only one things, that is Sn equal to 4n minus n square।
फ्रेंड्स यहाँ पे, हाँ सभी लोग माइक को म्यूट कर लेंगे तो आपके पास बढ़िया से आवाज जाएगी और आप अच्छे से समझ सकेंगे। तो जो बच्चों के माइक ऑन है वो माइक को बंद कर लीजिए, और अगर आपको कुछ पूछना भी है तभी आप माइक को ऑन करिए और तभी पूछिए, ठीक है। लेकिन अभी बीच में आप कुछ पूछिएगा नहीं, आपको पूछने के लिए हम टाइम देंगे, तब आप माइक को ऑन कर लीजिए और वन बाई वन पूछिएगा। तो अभी बीच में अगर आप माइक ऑन रखेंगे तो साउंड क्लैश होता है, या फिर वो ये जो वॉइस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो वो बढ़ने की वजह से फिर आपके पास क्लियर आवाज़ नहीं जाएगी। तो इसीलिए माइक को म्यूट करके रखिए। मैं जब आपको टाइम दूंगा फिर आप जितना चाहें उतना पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मैं 4 की बात करूँ तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ए एन इक्वल टू 4n-n², जनरल टर्म लिख लेते हैं, मतलब वो वर्ड्स को ध्यान में नहीं रखते हैं। यहाँ पे बोला क्या क्लियरली, द सम ऑफ, सम का मतलब एस एन हो गया, और यहाँ पे एस एन का मतलब है कि आप सिर्फ यहाँ एस एन, सम का मतलब एस एन ही लिख सकते हैं और कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एस एन इक्वल टू 4n-n², so you can write only Sn. Okay, now required things is here, that first one is what is the first term, so A is required. After that, what is the sum of first two term, means S2 is required. And after that, what is the second term, means A2 is required. And then next one is A3 and A10. A3 भी आपसे पूछा गया है और A10 भी आपसे पूछा गया है, साथ में आपसे लास्ट में फिर AN भी पूछा गया है। तो इतने सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए गए हैं। तो देखिए, जब आपको S2 चाहिए तो आप यहाँ पे S2 के लिए सिर्फ N को रिप्लेस करेंगे 2 से, तो आपको S2 ऑटोमेटिकली मिलेगा। और फर्स्ट टर्म भी आपको यहाँ पे n इक्वल टू 1 लिखने से ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे S1 का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ वन टर्म। तो सम ऑफ वन सिंगल टर्म का क्या सम होगा, कुछ भी नहीं, इसका मतलब वो सिंगल टर्म ही होगा। तो फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू अगर हम पता करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एन की जगह 1 पुट कर देना है। तो आप देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, वन बाई वन चलते हैं आगे। सो हियर putting n equal to 1, 2, 3 and so on in this given, then you will get S1 equal to, that is S1 equal to 4 into 1 minus 1 square. So 4 into 1 means 4 ही होता है, that is you will get 3. इसके बाद S2 equal to, means you will replace n by 2, that is 4 into 2 minus 2 square. So you will get 4 to the 8 and 8 minus 4, 2 square means 4. So this is you will get 4. Okay, now next one is given only A2, A3 and A10, AN. Okay, so what to do for next? You will get easiest these all things when you find the AN. Since dear you know that a formula which you tell you already, that is Sn equal to, sorry, An equal to Sn minus 1. So this is the general formula, means An equal to Sn and minus Sn minus 1. So this is the formula which I have told you already in the starting. So first of all, you will find here Sn minus 1. Sn you know this is given and Sn minus 1 is not given. So first of all, you will find here, since Sn minus 1 equal to, you will replace all n by n minus 1. That is 4 n minus 1
and minus n minus 1 whole square. So you will get on simplify it is 4n minus 4. After that minus sign, and you used here identity a minus b whole square. So this is a square means n square, and plus b square means only 1, and minus 2ab. So 2a means n and b means 1. So only you will write 2n. After that, when you operate this bracket, you will get 4n minus 4 and minus n square minus 1 and minus minus plus. So this is 2n. And after that, you will get here, this is 4n and this is 2n. So you will get 6n. Okay. And after that, this is minus 4 and minus 1. So this is minus 5, and this term is remaining only, so n square with negative sign. So this is the value of Sn minus 1. Now you will substitute this value here, so you will get now An equal to Sn. Sn means you will put this value. So this is 4n minus n square. And then here is the negative sign. And negative sign means you will change all the sign which you have just already in the this step, above step. So you will get minus 6n and minus minus plus 5, and after that minus minus plus n square. So keep in mind that मैंने एक स्टेप शॉर्ट कर लिया, यहाँ पे माइनस साइन था तो मुझे क्या करना था, पहले यहाँ ब्रैकेट लगा के वैल्यू पुट करना था, लेकिन मैंने वैल्यू पुट नहीं किया, डायरेक्ट ब्रैकेट को ओपन कर लिया, तो जितने भी ये साइन दिए थे सभी साइन चेंज हो गए। तो यहाँ पे जो माइनस था वो प्लस हो गया, प्लस था वो माइनस हो गया, इस तरह से आपको ये आंसर मिला। ठीक है, तो आप देखिए फिर क्या करना है, इस सभी क्वेश्चन में ऐसा होगा कि जो एन स्क्वायर टर्म है वो कैंसिल होगा। कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का दिया होगा, सारे क्वेश्चन में एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए एन स्क्वायर नेगेटिव, एन स्क्वायर पॉजिटिव, दिस इज कैंसिल्ड। नाउ रिमेनिंग थिंग्स यू सिंप्लीफाई हियर। सो व्हाट यू गेट, you will get here an equal to, that is first of all you write 4n minus 2n. So this, sorry, 4n minus 6n means minus 2. After that, 5 is positive sign, so you will write 5 first of all, 5, that is 5 minus 2n। ऐसा लिखने से आपकी गलती आगे नहीं होगी जब आप नेक्स्ट चीज पता करेंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो 6 लेंगे तो 6 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2n बचेगा, क्योंकि ये लार्जेस्ट नंबर है तो माइनस 2n मैंने यहाँ लिखा, और पॉजिटिव 5 है वो हमने पहले लिख लिया। तो ये आपका an आ गया। an आपसे पूछा भी गया था, अभी आपने कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं किया, an दिस इज रिक्वायर्ड। नाउ नेक्स्ट थिंग इज a2 a3 a10। तो अब आपको जो जो कुछ पता करना है वो आप 1 by 1 पुट करते चले जाइए। सो देयरफॉर a2 you will replace n by 2, that is 5 minus 2 into 2, you will get it 1, and then a3 and a3 you will get this 5 minus 2 into 3, so this is 2 into 3 means 6, and 5 minus 6 you will get minus 1, and now remaining things is a10. So therefore a10 equal to, you replace this n by 10, so 5 minus 2 into 10, and 2 into 10 means 20, and 20 minus 5 means what you get, 5 minus 20 means minus 15. So this is the a10. So you will get the all answer, because a is required, so a is means s1, s1 and a, this is the same things. This shows that s1 means sum of first term, sum of first term means first term, so this is the first term is 3. Finally you can write that your answer, therefore you will get a1 equal to, means a equal to 3, and s2 equal to, this is 4,
and next a2 equal to that is 1, a3 equal to minus 1, and after that a10 equal to this is minus 15. So these are combinedly answer of your क्वेश्चन। तो ये आपका पूरा आंसर हो गया। तो इस तरह से ये एक ही क्वेश्चन आपकी बुक में यहाँ पे दिया हुआ है, इस एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन इस टाइप का है। तो एक ही क्वेश्चन होने की वजह से ये स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि जैसे उन्हें यहाँ पे 4n माइनस एन स्क्वायर दिया होता है तो यहाँ एस एन नहीं लिखते हैं, वो ए एन लिख लेते हैं, और स्टार्टिंग ही जब गलत हो जाएगी तो फिर एंड उसका कभी सही नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे पहले हमें स्टेटमेंट पे ध्यान देना होगा। यहाँ पे दिया हुआ है सम ऑफ मीन्स इट इज एस एन, और यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म दिया है तो एन लिखना ही पड़ेगा। तो सम ऑफ एन टर्म इज गिवन दैट 4n माइनस एन स्क्वायर। तो ये तो हो गया सम, ठीक है। इसके बाद में फिर आप 1 बाई 1 जो भी रिक्वायरमेंट है वो पुट करते चले जाएंगे, और ये फॉर्मूला जब एस एन दिया हुआ होगा तो आप इसे एन की जगह पर ए एन इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1 का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब आप ये वैल्यू यूज फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको जनरल टर्म मिल जाएगा, और जनरल टर्म मिलते ही फिर आप वो सारी चीजें पता कर सकते हैं जो आपसे पूछी गई हैं। तो ये एन टर्म का फॉर्मूला है, इसे अच्छे से याद रखना है। ये फॉर्मूला भी स्टूडेंट्स भूल जाते हैं क्योंकि इसका यूज ही कहीं नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन ही दिया है इस टाइप का, तो इसका भी यूज इसी क्वेश्चन में होना है और कहीं होना नहीं है। तो ये फॉर्मूले भी स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। तो इन दोनों को याद रखना है कि जब सम दिया हो तो एस एन लिखना है, और जनरल टर्म निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। इस चीज में अगर कंफ्यूजन हो तो उसको फिर से समझ लो कि एस एन माइनस 1 कहाँ से आया। एस एन आपको दिया हुआ था, इसी में एन की जगह एन माइनस 1 पुट कर देंगे और उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको एस एन माइनस 1 का वैल्यू मिल जाएगा। तो वो वैल्यू फिर आप यहाँ दोनों सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हर केस में एन स्क्वायर कटेगा। कोई भी क्वेश्चन बना रहे एक्स वाई जेड, एन स्क्वायर का टर्म रिमूव हो जाएगा, तो जो बचेगा वही आपका जनरल टर्म होगा। उस जनरल टर्म से आप कुछ भी पता कर सकते थे। तो ये आपका क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे गए। कोई स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं पता नहीं, तो आप अपना माइक को थोड़ा, हाँ पूछिए, पूछिए पूछिए। कैसे करके? हाँ हाँ कर सकते थे, लेकिन वहाँ चांसेस बढ़ जाएंगे, वहां पर आपके मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला भी लगाना है, माइनस भी पहले लगा है, और जब आप फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो वहां भी माइनस आएगा, तो वहां पे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर थोड़ा सा आपका माइंड इधर से उधर हुआ, थोड़ी सी चीज आपने भूल गए, तो फिर थोड़ी सी सावधानी आपसे हट गई तो माइनस का प्लस तुरंत हो जाएगा। इसीलिए आप उसे अलग से सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि वहां पे माइनस पहले से ही आ रहे हैं, उन्हें सॉल्व करना पड़ रहा है, और एक माइनस आपका यहाँ लग रहा है, फॉर्मूले में लग रहा है एस एन माइनस एस एन माइनस 1। तो इस वजह से यहाँ पे माइनस प्लस की गलती होने के चांस बढ़ जाएंगे, तो इसीलिए इसे सेपरेटली पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद तब आप उसका आंसर निकालेंगे, तो आपका आंसर एकदम सही आएगा, गलत होने के चांस बिल्कुल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 13 और 14। क्वेश्चन 13 14 में आपसे बोला गया है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। ये तो 13 क्वेश्चन हुआ। 14 क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जितने ऑड नंबर्स आते हैं उनका सम पता करिए, ठीक है। तो यहाँ सम दोनों में ही पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 आप कैसे सॉल्व करोगे? क्वेश्चन 13 says that the sum of first 15 multiple of 8। फर्स्ट, ये भी ध्यान रखना है, यहाँ फर्स्ट दिया, फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8।
तो आप देखिएगा कि आप फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 कैसे निकालेंगे। पहले तो आपको यहाँ पे एपी बनानी पड़ेगी और एपी के बाद में तब आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आप देखिए, आप यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 and up to last 15. Okay, and question says the multiple of 8. Okay, so you will multiply it here by 8, that is into 8 into 8, and after that here is also 8 and is it also 8. सो दीज आर द मल्टीपल ऑफ 8। आपको अच्छे से पता है मल्टीपल ऑफ 8 लिखने के लिए आपको 8 का टेबल लिखना है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। ये क्लास 6 में आप पहले से ही पढ़ के आए मल्टीपल कैसे लिखे जाते हैं। तो मल्टीपल का मतलब है सक्सीवली नंबर विच इज मल्टीप्लाइड बाय इन द नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे अगर जनरल रूप फॉर्म में बोले तो ये कहेंगे टेबल 8 लिख दो। टेबल 8 कब तक लिख दो, जहां तक का कहा गया है। तो यहाँ 15 टर्म के लिए कहा गया है, तो 10 8 जा 8 10 जा 80 के बाद भी आपको 5 टर्म आगे बढ़ना है। तो मैं इसे इस तरह से लिख लूंगा। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने से आपको मिलेगा देन एपी दिस इज इक्वल टू 8 1 जा 8 16 and this is 24 and this is 32 and after that dot dot it is 8 5 15 8 जा 120 and the question says find the sum of all these first 15 terms. So you can write here you can mark the plus sign also. अगर आप चाहें तो यहाँ प्लस भी लगा सकते हैं आप। therefore sum, आप नेक्स्ट स्टेप में इसे ऐसे लिख सकते हैं सम इक्वल टू 8 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 32 प्लस एंड सो ऑन अप टू प्लस 120। तो ये आपका हो गया, एपी बन गई। ए इक्वल टू 8 and the common difference b equal to 16 minus 8 means it is 8 and the last term is given here, that is an equal to 120. So question says that find the sum of first 15 terms. So how can you find? Now you can use here the formula that is Sn equal to n by 2 and a plus an, because last term you have already, so you can use simple formula that is a plus an. Now you put all the values. N is 15 and here also you will put up 15 and a is given here 8 plus an is given that 120. So now 120 plus 8 means 128 and after that 15 by 2 you will write same to same. Now you can cancel this 2 by 128, that is 64. So now you multiply 15 and 64, you will get the sum of the multiple of first 15 of 8. So it is, you will get 960. So this is the sum of first multiple of 8. तो ये आपका आंसर हो जाएगा S15 equal to 960. Finally you can write here this is the answer of this question. ठीक है, तो ये आप इस तरह से करेंगे। इसके बाद आप देखिएगा जो इसका 14 पार्ट दिया है, ये 14 पार्ट इम्पोर्टेंट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो इम्पोर्टेंट भी वो भी है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे एक बार स्टेटमेंट समझो, करना बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही है। करना क्या है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। तो आपको सबसे पहले एपी बनानी है, ऑड नंबर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर में 14 की बात कर रहा हूं, तो यहां मैंने लिखा 14 और 14 के बाद में आप देखिए किस तरह से इसकी एपी बनाएंगे और किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। तो उस चीज की मैं बात करता हूं। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। तो सबसे पहले आप इस चीज को नोट करिए कि बिटवीन बोला गया है, इसका मतलब है स्टार्टिंग और लास्ट टर्म को छोड़ दिया जाना है।
तो स्टार्टिंग और लास्ट अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर आपका जीरो छोड़ना पड़ेगा। जीरो के बाद जो नंबर आता है वो ऑड लेना है, तो 1 इज द ऑड आफ्टर जीरो। इसके बाद फिर 3 ऑड होगा, फिर 5 ऑड होगा, इसी तरह कंटिन्यू चलता रहेगा। और 50 को छोड़ देना है, 50 से पहले ऑड नंबर लेना है, तो 50 से पहले ऑड नंबर आएगा 40। तो एपी आपकी इस तरह से बन के तैयार हो गई। अब आप देखिएगा कि जब एपी बन गई तो आप यहाँ पे देखिए कि इसमें टर्म पता नहीं है कितने टर्म, यहाँ से लेकर 1 से लेकर 49 तक कितने टर्म होंगी। एन इज नॉट गिवन हियर। वैसे तो ये छोटा नंबर है, इस छोटे नंबर की वजह से आप यहाँ पे एन ओरल भी बता सकते हैं कि यहाँ पर एन कितना होगा। एन यहाँ पर आपका हो जाएगा 24, क्योंकि 50 नंबर्स हैं कुल मिला के, तो 50 का हाफ कर दीजिए, है ना। तो 50 का हाफ करेंगे तो 25 होगा। लेकिन यहाँ पे जीरो था और यहाँ 50 था, तो जीरो और 50, जीरो भी आपका इवन ऑड नहीं होता है, 50 भी ऑड नहीं होता है। तो इसका मतलब है जो इवन नंबर्स में जा रहे हैं वो एक नंबर ज्यादा जा रहा है, तो आपका 26 होगा इवन नंबर। और ऑड नंबर 1 से लेकर इधर भी जीरो छूट गया था और उधर भी 50 छूट गया था, इसलिए जो ऑड नंबर होंगे वो 24 होंगे। लेकिन ओरल बताने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि अगर यहाँ नंबर बढ़ा दे दिया जाएगा तब आप फंस जाएंगे और आप वहां पे आंसर नहीं दे पाएंगे। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर सबसे पहले जो गिवन था वो आपको लिख लेना है। हियर a इक्वल टू 1 एंड d इक्वल टू 2 हो जाएगा। 3 माइनस 1 मीन्स 2 एंड 5 माइनस 3 मीन्स 2। तो आप देखेंगे यहाँ पे n a और d दो तीन चीजें मिल गई। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप यहाँ पे ये जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे, a n इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये इसलिए पता करेंगे कि आपको n यहाँ पे निकालना है। लास्ट टर्म दिया है तो आप लिख सकते हो ए एन इक्वल टू 49। ठीक है, अब आप ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे, तो जैसे ही आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, n मिल जाएगा। और जब n मिल जाएगा तो आपको पता ही है लास्ट टर्म दिया है तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, तो आपको उसका सम भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में इतना ही डिफरेंस है कि सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला यूज करके n का वैल्यू पता करना है। जब n का वैल्यू आ जाएगा तब आप फिर इसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, द सम ऑफ 700, the sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prize to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding price, find the value of each of the prizes. तो क्या कह रहा है ये कि जो 700 रुपीज हैं ये 7 लोगों में बांट दिए गए हैं और वो प्राइज के रूप में दिए गए हैं। लेकिन कंडीशन क्या रख दी कि जो पहले बच्चे को प्राइज मिलता है अगले बच्चे को 20 कम मिलेगा और उसके अगले बच्चे को भी 20 कम मिलेगा, फिर इसी तरह से 20 कम होता चला जाएगा और पूरा 700 रुपीज डिवाइड हो जाना है। तो अब आप देखिए कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में दे दिया जाए तो आप उसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसे बताना चाह रहा हूँ। हालांकि ये भी क्वेश्चन डेली लाइफ पर ही डिपेंड करता है, जबकि सिलेबस में साफ कहा गया है कि डेली लाइफ वाले क्वेश्चन सभी सिलेबस से हटा दिए गए हैं एपी के। तो लेकिन ये फिर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुझे डाउट है इस चीज का। तो आप देखिए कि कैसे इसको सॉल्व करना है उस विषय में मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो 7 प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, 7 प्राइजेस आर, ध्यान से समझना, मैंने यहाँ सबसे पहले ए लिख लिया। इससे क्या है, मैं अपने हिसाब से इसे बता रहा हूँ, इसका सोल्यूशन बहुत आसानी से आ जाएगा। इसके बाद फिर मैंने बोला 20 लेस हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने लिखा a माइनस 20, फिर यहाँ पे लिखा a माइनस, फिर 20 कम कर दिया तो 40 हो जाएगा, और फिर इधर मैंने a माइनस फिर से 20 कम कर दिया तो a माइनस 60 हो गया। ठीक है, इसी तरह से अब हम इसके आगे भी चले जा रहे हैं। तो आगे देखिए कैसे लिखेंगे, a प्लस 20,
और फिर इधर a प्लस 40, 20 ऐड कर दिया, और यहाँ भी a प्लस 60, यहाँ भी हो जाएगा आपका a प्लस 60 का मतलब है 40 में 20 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा a प्लस 60। तो ये आपके काउंट करिए, 1 2 4 5 6 7, 7 प्राइजेस हो गए, है ना। अब उसने कहा कि ये 7 प्राइजेस जो है ना, ये बच्चों को जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, ये टोटल अमाउंट था 700, ठीक है। तो इसको इस तरह से एपी में जब भी हम टर्म लेते हैं तो यही सीक्वेंस में लेते हैं। देखिए यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो a माइनस 60, इसमें 20 ऐड किया तो प्लस 20 करेंगे तो 40 रह जाएगा, फिर इसमें 20 ऐड करेंगे तो माइनस 20 रह जाएगा, फिर इसमें 20 ऐड करेंगे तो 20 से 20 कैंसिल होके a ही रह जाएगा, फिर a में 20 ऐड करें तो a प्लस 20 हो जाएगा, इसमें a प्लस 20 मीन्स 20 का डिफरेंस सभी में है। तो अब आप देखिएगा कि हम इसे क्या करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में जो बोला गया है उसमें ये कहा गया है दैट इज a माइनस 16 प्लस a प्लस 40 प्लस a प्लस 20, मीन सबको हम प्लस कर रहे हैं, प्लस a प्लस a प्लस 20 प्लस a प्लस 40 प्लस a प्लस 60, सबको प्लस कर दिया और इसका वैल्यू उसने बताया दिस इज 700। अब ऐसा हमने देखिए जब ये नंबर लिए थे तो वो इसी बेस पे लिए ही थे कि आप देखो यहाँ पे 60 माइनस का 60 प्लस का कैंसिल, 40 प्लस का ये माइनस का है, सॉरी यहाँ पे माइनस लिखना था, मैंने यहाँ पे दोनों में प्लस लिख दिया है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है माइनस, ये माइनस का था, आप माइनस है ना तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, तो ये माइनस का 40 और ये प्लस का 40 कैंसिल, और इधर माइनस का 20 और ये प्लस का 20 भी कैंसिल, तो आपके सारे नंबर तो कैंसिल हो गए। अब आपका बचा केवल a, देखिए a, एक और a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, सबको प्लस कर लिया, तो ये आपका हो गया 7a इक्वल टू 700। सो a इक्वल टू हो जाएगा 700 बाई 7, मीन्स इसका वैल्यू आ गया 100। तो a का वैल्यू आ गया 100। अब आप क्या करिए, a का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो आपके 7 प्राइजेस आ जाएंगे। देयरफॉर 7 प्राइजेस आर, देयरफॉर 7 प्राइजेस आर, ये आपका यहां से शुरू होगा 100 माइनस 60, 100 माइनस 60 मीन्स 40 आ जाएगा, फिर 100 माइनस 40 मीन्स 60 आ जाएगा, और 100 माइनस 20 मीन्स 80 आ जाएगा, और यहाँ पे पूरा 100 ही आ जाएगा, ए का वैल्यू है, फिर यहाँ पे 120 हो जाएगा, और 140 हो जाएगा, और 160 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया 160। सो दे आर द 7 प्राइजेस, तो ये सभी 7 प्राइजेस आ गए, कंप्लीट हो गया ये। तो इस तरह से भी इसे किया, इस तरह से आप कर सकते थे, ठीक है। और इसके बाद में ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, और साथ में अगर आप चाहते तो यहाँ पे सम का फॉर्मूला, लेकिन वो थोड़ा लेंदी पड़ेगा, तो मुझे लग रहा है ये सबसे बेस्ट तरीका है और बहुत आसान भी है, आपने आसानी से कर लिया, कोई कैलकुलेशन भी नहीं। यहाँ पे फॉर्मूला लग के भी किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है मैं बताऊं थोड़ा हिंट करके। यहाँ पे दिया है एस, ये 700 टोटल अमाउंट, मीन्स ये SN दिया है, और 7 प्राइजेज है, इसका मतलब N7 हो जाएगा, और ये बोल रहा है कि सभी में डिफरेंस 20 का होना चाहिए, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस 20 हो गया, 20 हो गया। अब आपको क्या चीज नहीं पता है, पता नहीं है तो केवल फर्स्ट टर्म पता नहीं है, तो अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए SN का, तो यहाँ फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, और फर्स्ट टर्म मिलने के बाद फिर आप प्राइजेस पता करेंगे, तो वो बहुत लेंदी पड़ेगा और आपको थोड़ा सा हो सकता है वहाँ मिस्टेक भी हो जाए। तो ये सबसे इजी प्रोसेस है और फुल मार्क्स भी आपको मिलेंगे, क्योंकि आपने अपना माइंड पूरा यहाँ यूज कर लिया, और माइंड का ही मार्क्स मिलता है, पेज भरने का मार्क्स नहीं मिलता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 16। और प्यारे बच्चों, यही थी आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इतने क्वेश्चन थे, तो आप इन्हें रिवाइज 0.4 जो ऑप्शनल क्वेश्चन है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताता हूं। विच टर्म ऑफ द एपी
AP is given that this is important question, that is AP is given and it is 121 and 117, after that 113 and so on. क्वेश्चन सेज दैट व्हाट इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ एपी। आप देख रहे हो कि यहाँ पे सारे टर्म डिक्रीज हो रहे हैं, तो डिक्रीज होते होते एक केस ऐसा आएगा कि नेगेटिव नंबर भी शुरू हो जाएंगे। इसका एंड तो है नहीं, कहाँ तक करना है, कंटिन्यू चलते जाइए चलते जाइए। तो एक पोजीशन यहाँ पे आएगी कि जहाँ पे नेगेटिव नंबर्स आएंगे। तो अगर नेगेटिव नंबर्स आते हैं तो उस केस में क्या होगा, वही नंबर आपको पता करना कि फर्स्ट नेगेटिव नंबर कौन सा होगा। तो वो आप कैसे पता करोगे, इस चीज को हमें बताना है। तो आप क्या करोगे, हियर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हियर a इक्वल टू 121, d इक्वल टू 117 माइनस 121 का मतलब -4 आ जाएगा, और कुछ आपको दिया नहीं है, इतना ही दिया है। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है। आप जानते हो सिंस an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जनरल फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वैल्यू पुट करेंगे तो देखो an आपका an ही रहेगा, क्योंकि आपको n पता ही नहीं है। a की जगह आप लिखेंगे 121, n माइनस 1 आपका सेम टू सेम रहेगा, d -4 है वो आप पुट करेंगे। तो हो गया 121 सेम टू सेम, और यहाँ -4 से यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो -4n और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 बन जा 4। तो आप देखो 121 और 4 कितना हो जाएगा 125 एंड -4n, ये वैल्यू आ गया आपका an का। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की चीज है, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपको वो चीज पता है तो आप फटाफट इसका आंसर निकालोगे, और अगर नहीं पता है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि करना क्या है इसमें। बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन यहाँ तक करते हैं और उसके बाद फिर एग्जाम में छोड़ के चले आते हैं, क्योंकि मैं कॉपी चेक करता हूँ बोर्ड की, तो बहुत सारी कॉपियों में ये चीज मिलती है, फिर उसको पता ही नहीं रहे कि आप आगे क्या करना है। तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया, फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। नेगेटिव टर्म का मतलब अब आप थोड़ा दिमाग लगाइए। नेगेटिव टर्म का मतलब नंबर जो जीरो से छोटे हैं, जो जीरो से छोटे नंबर हैं वही तो नेगेटिव होंगे। नंबर्स लेस देन जीरो आर नोन एज नेगेटिव टर्म्स। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस an इज लेस देन जीरो। आपसे ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आपको नेगेटिव पूछा है, तो आपको नेगेटिव का मतलब है जीरो से छोटे नंबर चाहिए, तो आप तुरंत लिखेंगे an लेस देन जीरो। अब an का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, an का वैल्यू तो पता है, an का वैल्यू है 125 माइनस 4n लेस देन जीरो। ठीक है, तो आप देखिए अब एक एक करके ट्रांसपोज करिए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -4n इज लेस देन, इसको ट्रांसपोज करिए राइट को तो हो जाएगा -125। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है, वैसे तो मैं आपको ऐसे ही कर दूं, लेकिन ये चीज आपको भी समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे आप माइनस से माइनस कैंसिल नहीं कर सकते, कैंसिल करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप ये माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो आपके यहाँ पे साइन बदल जाएंगे। ये जो इक्वलिटी का ये रूल होता है कि अगर नेगेटिव साइन आपको हटाना है तो सबसे पहले ये साइन को बदलिए। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा इसलिए होता है कि ध्यान देना, मैंने यहाँ पे लिखा, इस बात को समझना ऐसा किस लिए होता है। मैंने यहाँ पे लिखा -5 इज लेस देन -2। आपको अच्छे से पता है कि -2 बड़ा नंबर है, -5 छोटा है कि नहीं है। तो -5 इज लेस देन -2, ये स्टेटमेंट इज ट्रू है। अब मैंने यहां से देखिए माइनस का ये आपका रूल लगा दिया, माइनस माइनस कैंसिल। तो आप भी बताइए क्या 5 इज लेस देन 2, ये तो गलत हो गया, 5 बड़ा हो गया तो छोटा हो गया, तो माइनस इसीलिए कैंसिल नहीं किया जाता। तो आपको माइनस अगर कैंसिल करना है तो आप ऐसे कैंसिल करोगे, ये कैंसिल और ये साइन चेंज, अभी सही हो गया। माइनस, तो माइनस कैंसिल करने के लिए ये इक्वलिटी चेंज करनी पड़ेगी। आप देखिए अभी भी स्टेटमेंट सही है, 5 इज ग्रेटर देन 2, यस ऑफ कोर्स 5 बड़ा है 2 से, तो यहाँ भी यही केस यूज करना पड़ेगा।
तो आप जैसे ये माइनस कैंसिल करेंगे तो ये इक्वलिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आपका हो जाएगा 4n ग्रेटर देन 125, लेस की जगह ग्रेटर और माइनस हट जाएंगे। तो ये बच्चे गलत करते हैं। अब आप देखो n इक्वल टू फिर से 4 ट्रांसपोज करेंगे तो 124 डिवाइड बाई 4 दैट इज कितना आ जाएगा, 125 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 31 एंड 1/4, मीन्स ये पूरा कैंसिल नहीं होगा। 31 एंड 1/4 4 रिमाइंडर रह जाएगा। ठीक है, तो ये 31 और सॉरी मैंने यहाँ पे इक्वल लगा दिया, इक्वल नहीं ग्रेटर। तो अब आप देखो ये स्टेटमेंट आपसे क्या कह रहा है, n बड़ा है 31 से, 31 से बड़ा है तो इसका मतलब 31 के बाद कौन सा नंबर आता है, 32 सिंपली। तो आप यहां पे लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट n इक्वल टू 32। तो ये आपका 32 जो आया यही आंसर है, मींस इस एपी का 32 टर्म जो यहाँ पे आएगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। तो आप फाइनली आंसर लिखोगे देयरफॉर 32th टर्म ऑफ एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो ये आपका आंसर हो गया कि इस एपी का जो पहला नेगेटिव टर्म होगा वो 32 टर्म होगा। इस तरह से 1 2 3 4 5 चलते जाएंगे तो 32 नंबर पे। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।